unit here. You simply take notation is u t minus a. Now, what is it defined? What it is defined? U t minus a equals to 0 if t less than a, and 1 if t is greater than a, and a value is must be greater than equal to. So simply you can say u t minus a. Suppose you want to represent it graphically, then suppose this is your t axis. We want to plot a ut, then simple, if this is the point a, then at the point the value will be 1. At the point A onwards, the value is 1. Rest our value is 0. Clear? ut minus a. Ut minus a. Ut is the you can do it. Now, what is the physical signification of this? Just like you can take a switchboard, on, off. On means work with progress, off means बंद. That means switch on हो गया तो एक threshold value में आ गया, then process will start. If less than that value, then value is 0. Clear? Now, we want to find the Laplace transform of the unit step function. Now, my work is to find L of u t minus a. Okay. Now, simple, apply the definition. Laplace transform of any function. Formula क्या है? 0 to infinity e to the power minus st. F is written here. F equal to u t minus a. Now, you can break these into two parts, 0 to a and a to infinity. So 0 to a e to the power minus st into function value. Function value you have from 0 to a. Okay, I will write later on. T minus a dt plus a to infinity e to the power minus st u t minus a dt. Hello? Hello? Yes, sir. Now you can see here, what is the function value here? From 0 to a, value is 0. So here first part will be 0, but second will be a to infinity e to the power minus st ut minus a value is 1. Now we simply we can integrate this. What is the value here? E to the power minus st integration e to the power minus xt divided by minus s limit from a to infinity. Now upper limit gives you 0 and lower limit gives e to the power minus as divided by. Okay. So you remember this formula. Laplace transform of u t minus a will be e to the power minus as divided by. याद रहेगा? Laplace transform of u t minus a equals to e to the power minus as divided by. So knowing this, can you write for Laplace transform of ut only? A value will be here 0. Yes or no? Here a value is 0. So what it gives? E to the power 0, that means 1 divided by. Here, everyone getting it? Hello? You know we are Yes, sir. talking. So from here, we can define for the inverse part. So here, from here you can define 8 inverse of 1 by s
equal to ut. Okay, and here you can define, right? L inverse of e to the power minus as divided by s equals to u of t minus a, right? ये तुम्हारा Laplace यही है, Laplace yes yes. Yes, sir. तो इस पेज में इसको लिखो पहले, बाद में इसका यूज आएगा। तो आफ्टर knowing this, we will go for a important theorem, that is second shifting. Second shifting theorem. First shifting already हो चुका है, ये second shifting. Here if ft is the Laplace transform Fs, then Laplace transform of, ध्यान से देखो, f of t minus a ut minus a, L of Laplace transform of ft minus a ut minus a will be e to the power minus as. Or in the reverse side, you can go for a inverse Laplace. So L inverse of e to the power minus as, Fs will be how much? Small f of t minus a u of t. इसलिए तो आज का क्लास का इम्पोर्टेंस तो बच चुका है, 1 2 3 4 और ठीक है। और इसके लेकर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जाए अभी। Yes, sir. में ग्रीन पेन के लिए मैं अरेंजमेंट करता हूँ। ओके, चलो तो एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एग्जांपल के अंदर फिर और एक थ्योरी डालना है। क्वेश्चन इज फाइंड द, तो कुछ मैं लेके आता हूँ। हेलो, अभी देखो, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी इक्वल टू 2 for 0 less than t less than 5. Value is 0 for 5 less than t less than 2 pi, and sin t for t greater than 2 pi.
Is it visible clearly? हाँ दिख रहा है। Okay, हम इसका Laplace transform करेंगे. Now, first work is to, for this type of question, we will go with two steps. First step is convert the function in terms of unit function. Okay. First work is to convert the function into unit step function, and in step 2 you go with Laplace second shifting property. Okay. So for that one, यहाँ से देखो how we convert this function. तो एक formula लो. तो this formula. Suppose the function is given ft equal to, देखो एक generalized लिख रहा हूँ. f1 0 less than t less than a1. Okay. f2 a1 less than t less than a2. f3 okay, a2 less than t less than a3 ऐसा करके जाएगा. Then how we know? So simple ft can be written as f1 into u t minus first part 0. f1 into u t minus 0 plus f2 minus f1 into u t minus a1 plus f3 minus f2 u t minus a2. Getting it what I am doing? Hello? Everyone look here. Yes, क्या हो रहा है? पहला वाला अगर 0 से है तो 0, पहला वाला के लिए कुछ नहीं करना. f1 t minus 0 लोअर लिमिट. Second is f2 minus f1, second minus first into u t minus a1 lower limit. Next f3 minus f2 u t minus a2 ऐसा करके जाता रहेगा. एंड लास्ट में सपोज ठीक है, लास्ट में सपोज f k है, f k तो a k minus 1 f k minus 1 के लिए क्या लिखोगे? देखो सिंपल यू कैन से a k ग्रेटर देन बाकी सब और t Sir, a k greater minus than 1 हाँ greater than t a k minus 1 greater than a k. लेस देन. तो लास्ट पार्ट के लिए इंफिनिटी के लिए क्या करें? लास्ट पार्ट अगर आफ्टर दैट पूरा लास्ट स्टेप में जो भी है सपोज दिस एफ इज माय लास्ट स्टेप. तो लास्ट स्टेप के लिए क्या होगा? देखो दिस इज टी It's a t greater than ak. टी ग्रेटर देन ए. तो यहाँ पे देखो थोड़ा चेंज हुआ है, ग्रेटर देन सी बोला है. तो उसके लिए क्या देखो एफ के माइनस एफ के माइनस वन सेल्फ है, लास्ट वाला उसका नेक्स्ट लास्ट इंटू यू टी माइनस के. ओके, इसको याद रखो. ये मैं जनरलाइज फॉर्मूला दिया हूँ. ठीक है, बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन में 3 या 4 का देते हैं. यहाँ पे 3 दिया है, कोई में 4 देगा, किसी में 2 देगा. ठीक है, तो नाउ नोइंग दिस मैं अभी ये क्वेश्चन तो यह पहला स्टेप हो गया. तो सेकंड स्टेप उतना ही इजी है. ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या दिया है? एफ टी इक्वल टू देखो 2 0 लेस देन t लेस देन पाई 0 पाई लेस देन t लेस देन 2 पाई एंड साइन t ग्रेटर देन 2 पाई. ना ये है तो आई कैन राइट एफ टी एज हाउ मच? पहला वाला f1 2 into u T minus 0. That's only t. quantity plus 0 minus 2, getting it? f2 minus f1 u t minus T 5 minus pi. plus
sin t minus 0 mu t minus 2 pi इज इट। तो इसको ध्यान से देखो तो थोड़ा सिंपलीफाई करोगे तो व्हाट इज इट 2ut minus 2u t minus pi plus sin t u t minus 2 pi, right? Clear? Clear? Yes, sir. We have Yes, sir. converted the function as a combination of unit step functions. Okay. Now next work is to find the Laplace transform. Laplace transform के लिए we want to apply the second shifting property. So now we want to find the Laplace transform of ft. That will be Laplace transform of 2ut first bit, yes, minus 2 into Laplace transform of ut minus pi, getting it, plus Laplace transform of sin t into ut minus pi, right? You should know, right? Huh? Clear? Hello? T minus 2 pi, t minus 2 pi. Now, अभी एक एक करके करते हैं. Now, Laplace transform of 2ut is how much? Already I have the formula. How much? 2 into 1 by s. Laplace transform of t is how much? 1 by s. देखो already तो निकाल चुके हैं. Laplace transform of ut is 1 by s. Second, Laplace transform of ut minus pi how much? ut e minus s will e to the power a का value how much? pi sir Pi, pi pi s divided by by s sir minus sir e to the power minus e to pi the s minus a, okay, minus pi s divided by s, right? अभी थर्ड के लिए देखो, I want to find for sin t u t minus pi, okay? अब इसके लिए देखो क्या करें. Next I need Laplace transform of sin t u t minus 2 pi, but सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ठीक से देखो कैसा दिख रहा है. Laplace transform of f of t minus a u t minus a, ऐसा था ना. ऐसा था. Yes, sir. तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे sin t है, u t minus 2 pi. हाई व्हाट आई नीड हियर, आई नीड t minus 2 pi हो गया तो चल जाएगा, है ना. तो कैन आई राइट दिस साइन एज ए, कैन आई राइट दिस साइन एज ए साइन t को मैं लिखना चाहूंगा t minus 2 pi के हिसाब से. देखिए देखिए मुझे कौन सा टर्म चाहिए था, t minus 2 pi. Now you know sin theta plus 2 pi how much? Sin theta plus 2 pi, sin 2 pi plus theta equal to how much? Sin theta cos theta. Calculate sin 2 pi plus sin a plus b का फॉर्मूला डालो नहीं तो sin 2 pi plus theta. क्या लिखोगे? 70 का काम है. sin 2 pi plus theta how much? Sin theta cos theta. तो plus sin theta minus sin theta. First. तो हम Yes, sir. Minus sin theta, sir. श्योर. Yes, sir. से प्लस साइन थीटा. तो घूम गए ना. सर 180 से प्लस है सर, माइनस होगा ना. 2 पाई ना, Zero. पाई का वैल्यू कितना 180, 2 पाई तो 360. फिर हाँ 360 प्लस थीटा है सर, 360 सर. हाँ तो प्लस और माइनस
नहीं तो साइन है साइन भी लगा लो, साइन है प्लस बी का फॉर्मूला। ये सर सर मैं 180 सोच लिया सर, ठीक है सर साइन। सोचने से नहीं होता ना। तो ये कितना देगा साइन टी माइनस 2 पाई, ओके, यू टी माइनस 2 पाई। नाउ यू कैन अप्लाई सेकंड शिफ्टिंग, देखो उसी फॉर्म में आ चुका है। तो क्या लिखोगे, ई टू द पावर माइनस ए एस एफ एस इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, राइट। तो ई टू द पावर माइनस 2 पाई एस साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला, साइन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोलो बोलो बोलो। सर a बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो एक आप है यहाँ पे, सर t बाई कहाँ से आया फिर, सही है ना, 80 साइन 80। ये सर 1 बाई तो फर्स्ट स्टेप हो गया तुम्हारा, तो ए तीनों को स्क्वायर भी प्लस मिला दो, हेंस हेंस ये तीनों को लिख लेना, फर्स्ट मिला, सेकंड मिला, थर्ड मिला। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू, लिख देता हूँ हेंस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्या चाहिए था, एफ टी दैट इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पूरा सब, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2ut माइनस 2 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u t माइनस क्या पाए प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t u t माइनस पाए, ओके। ऑलरेडी मैं तीनों निकाल चुका हूँ, तो ये क्या है 2 डिवाइडेड बाय s माइनस 2, So u whole into t minus 2 pi. हाँ t माइनस पाए, ये साइन t u हाँ t सर माइनस sin 2, t y. ठीक है। तो सेकंड स्टेप कितना मिला था, e टू द पावर माइनस पाई स्क्वायर एस, e टू द पावर माइनस पाई एस डिवाइडेड बाय एस, एंड थर्ड वाला दिया मुझे e टू द पावर माइनस 2 पाई एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1। तो इसको अगर थोड़ा इसका ले सकते हो, तो एस लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, 1 माइनस e टू द पावर माइनस पाई एस प्लस e टू द पावर माइनस 2 पाई एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1। देखो थोड़ा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। यस सर। तो चलो इसको लेकर कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इजी वाला दे रहा हूँ, ठीक है, थ्योरी खत्म। क्वेश्चन पहला वाला, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आंसर तुम बोलना। ई यू टी माइनस 1 इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना है, टी यू टी माइनस 1। सेकंड शिफ्टिंग का एप्लीकेशन है, सेकंड शिफ्टिंग पास में है एफ ऑफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए। यहाँ पे अगर टी माइनस 1 होता तो बन जाता, नहीं, देन व्हाट यू डू, लैप्लास लिखिए, टी को मैं लिखना चाहूंगा टी माइनस 1, तो प्लस 1 डाल देंगे, यू टी माइनस। सेकंड स्टेप देखिए, एल ऑफ टी माइनस 1 यू टी माइनस 1 प्लस एल ऑफ यू टी माइनस 1। इसका सेकंड स्टेप तो क्या है, ई टू द पावर माइनस ए एस, ए का वैल्यू 1 इंटू एफ एस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, एंड हियर लैप्लास ऑफ यू टी माइनस 1 ऑलरेडी है मेरे पास, यू टी माइनस ए का फॉर्मूला, यू टी माइनस ए का फॉर्मूला ई टू द पावर माइनस ए एस डिवाइडेड बाय एस, ई टू द पावर माइनस ए एस डिवाइडेड बाय एस, ई टू द पावर माइनस ए हो गया, लैप्लास ऑफ टी इक्वल टू ठीक है, ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला, ठीक है, ट्रांसफॉर्म
फॉर्मूला टी का फॉर्म प्राप्त करना हम 1 by square. 1 by स्क्वायर तो पहले आंसर की टू द माइनस एस 1 by s here next and the Laplace transform of p minus 1 का होल स्क्वायर u p minus 1 ये बोलो कितना है जल्दी ना p minus 1 का होल स्क्वायर फिर सेकंड सेकंड दो सर ए टू द पावर -2s into 1 by square सर s square सर सर माइक Mic ऑन off. नहीं है। हाँ कैसे हुआ थोड़ा एक्सप्लेन करो एफ टी इक्वल टू हाउ मच स्क्वायर है ना तो e टू द पावर a का वैल्यू हाउ मच माइनस ए एस तो माइनस एस डिवाइडेड बाय e टू द पावर माइनस ए इनटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p स्क्वायर गलत कर रहा है p स्क्वायर का हाउ मच p स्क्वायर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म p स्क्वायर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म सर 2 by s cube सर तो गलत हो गया ना गलत हो गया तुम्हारा getting it everyone please everyone getting it or not सर फर्स्ट स्टेप में e टू द पावर -10 लिखकर बाई क्यों लिखे सर? नहीं बाय कर रहा था नहीं लिखा है अगर होता तो लिखता ठीक है तो और एक क्वेश्चन देखो इसका थोड़ा चेंज करना नेक्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर टू टी माइनस वन अभी क्या करोगे टी स्क्वायर try to write t square as a power of t minus 1 ओके अगर t स्क्वायर को तुम t minus 1 का कुछ करके हिसाब से लिख पाओगे तो बेटर हो जाएगा है ना तो डू टेक योर टाइम एंड डू कोई दिक्कत नहीं है
Can you do it? भाई t minus 1 को मैं t minus 1 plus 1 का होल स्क्वायर अब डालो t minus 1 का होल स्क्वायर plus 2 into t minus 1 plus 1 और यहाँ पर क्या करना है तो Laplace transform of t minus 1 का होल स्क्वायर plus 2 t minus 1 plus 1 u t minus 1 plus तो प्लीज निकालिए Laplace transform of t minus 1 whole square u t minus 1 plus 2 into Laplace transform of t minus 1 u t minus 1 plus Laplace transform of u t minus 1. Clear? Hello? Yes, sir. हम लोग कर सकते हो ये है तुम्हारा t minus 1 और फिर t minus 1 जो कि प्रीवियस में किए थे तो e to the power minus s into Laplace transform of t square to e to the power minus s Laplace transform of t plus Laplace u t minus 1 simple Laplace transform of u t minus 1 Laplace निकालो e to the power minus s रह गया 2 divided by s cube 2 e to the power minus s इसके लिए कितना था 1 by s square है u t minus 1 का 1 by s 2 e to the power minus s divided by s cube plus 2 e to the power minus s divided by s square plus देखो सेकंड सिक्वेंस से एग्जाम में श्योर क्वेश्चन है ओके डेफिनेटली यू गेट ऑन दिस तुमको बुक दिखाएंगे देखो क्वेश्चन विजुअल क्वेश्चन विजुअल Yes, sir, visible. देखो बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा सॉल्व करेंगे बोलो ट्राई टू सॉल्व एक एक करके सॉल्व करो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 डू क्वेश्चन नंबर 2 Laplace transform of t मिली चाहिए फंक्शन क्या लिखा है 0 लेस देन t लेस देन 1 के बीच में t है बाकी सब में 0 है तो फंक्शन को तोड़ना है फिर व्हाट इज सेइंग ft इक्वल टू t 0 लेस देन t लेस देन 1 बाकी सब के लिए 0 है नाउ यू कैन डू इट नाउ यू कैन डू इट और नॉट हेलो Yes, sir. ये पेज दिख रहा है कि नहीं जो मैं लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 तो फर्स्ट रिप्रेजेंट दिस एज ए यूनिट स्टेप फंक्शन देन फाइंड द Laplace ट्रांसफॉर्म डू ये जो पहला क्वेश्चन किया ना
ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन ऐसा टाइप में उसको ब्रेक करो and solve करो। टेक योर टाइम। ओके, आई एम हियर। Are you following or not? Yes, sir. तो आगे नहीं। हेलो, तो आज किसी का मन नहीं है। इक्वल टू ई यू टी माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस टी यू टी माइनस वन। अरे भाई इसमें दैट इज टी यू टी माइनस टी यू टी माइनस वन। Now you can apply the Laplace transform formula. Laplace transform में पहले मुझे चाहिए टी यू टी। सर हाँ, सर पहले हम एफ आई मीन फर्स्ट स्टेप में सिर्फ यू ब्रैकेट में टी लिखेंगे ना सर हाँ, हाँ, पहले। तो लिखोगे। हाँ, वहाँ पर आप सर फर्स्ट स्टेप में टी माइनस जीरो लिखे वहाँ। अपन हाँ सर भाई। लोअर लिमिट लिखते हैं हर बार। टी माइनस जीरो का यूटी आया नहीं। Yes, sir. ओके Same. ओके सर। यस फंक्शन सर। फॉर्मूला का क्लैरिटी के लिए लोअर लिमिट से। यस यस सर। तो ये पहला टी यू टी का क्या होगा? ऑलरेडी है फॉर्मूला। टी यू टी माइनस एक को तोड़ना है, इसका लिखोगे। नेक्स्ट लिखना क्या? टी यू टी माइनस वन पर इसको लिखोगे एल ऑफ टी माइनस वन प्लस वन यू टी माइनस वन। दैट इज पहले ये होगा कितना? एल ऑफ टी माइनस वन यू टी माइनस वन प्लस एल ऑफ यू टी माइनस वन। ये अलग अलग निकाल पाओगे। थोड़ा इसको घर में सॉल्व करना, किसी का नहीं होगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पे।
Knowing this, मैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड डिराक डेल्टा फंक्शन। अभी तो इसके लिए बोल देते हैं, ये मैं प्रेजेंटेशन बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट इज आवर डिराक डेल्टा फंक्शन। Next one is Dirac delta function. इसका नोटेशन होता है डेल्टा वाई, डेल्टा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है देखो। फर्स्ट कंसीडर द फंक्शन f of k p minus a, k का कोई भी वैल्यू दे सकते हो, इक्वल टू 1/k if a less than p less than a plus k and 0. If you write this function, then we define the impulse function. Impulse, I-M-P-U-L-S-E. Impulse function IK. IK क्या होता है? IK is the integration of 0 to infinity is fk p minus a with k. Okay. And you can see that the impulse function value will be, तो क्या आएगा, fk t minus a dt। तो 0 to infinity फंक्शन वैल्यू आ रहा है a to a plus k के बीच में, a to a plus k के बीच में वैल्यू है 1/k एंड बाकी सब के लिए 0 है। तो दिस इज 1/k बाहर, दिस इज इंटीग्रेशन t 0 to a plus k। तो क्या करें, 1/k बाहर a plus k, जीरो टू, सॉरी दो पार्ट है, 0 to a, फिर कहाँ से आएगा देखो, a to a plus k के बीच में t है, a का पीछे वैल्यू कितना है 0, a का आगे वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या a to a plus k, नॉट 0 to a plus k। तो 1/k अपर माइनस लोअर, तो a plus k minus a gives k, that means equals to 1. Impulse function IK is integration of this value will give you 1. Now look here. Now we can represent this fk in terms of unit step function. देखो, you can write fk t minus a as, जो वैल्यू पड़े तो पहला 0 है ना, तो पहला क्या देगा, fk t minus a इक्वल टू 0। देखो इसका ऊपर क्या है, ये है 0 लेस देन t लेस देन a। तो फर्स्ट पार्ट 0 इंटू नेक्स्ट 1/k minus 0 into u t minus a plus second 0 minus 1/k, that means minus 1/k u t minus a plus k. This is the representation of this impulse function in terms of unit step function. Now इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, 1/k बाहर लेके I can write u t minus a minus u t minus a plus k. This is the fk. Now if you want to find the Laplace transform of fk t minus k, then what can I write? I want to write 1/k बाहर, Laplace transform of u t minus a minus u t minus a plus k, or this will be
कितना 1/k बाहर, u t माइनस a का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आता है e टू द पावर माइनस as माइनस 2 माइनस e टू द पावर माइनस a प्लस ks this is the Laplace transform ut minus a and here right इसका नीचे कितना रहेगा इसका नीचे भी s इसका नीचे भी s तो you can write it as 1/ks into e to the power minus as minus e to the power minus a plus ks तो किसका Laplace transform है this is the Laplace transform of f k okay now come here if we take ध्यान से रखो take limit k tends to 0 when this interval value tends to 0 then what it gets then this will defined by your Laplace transform sorry this will call your Dirac delta function or this one is your delta of t minus a okay when you take limit k tends to 0 then your delta t minus a equal to limit k tends to 0 plus k t minus a okay so by knowing this value is nothing but your Laplace transform of delta t minus a equal to when k tends to 0 so देखो when k tends to 0 this value will give you only e to the power minus as तो याद रहेगा the Laplace transform of Dirac delta function is e to the power minus as clear to all Yes, sir. ये कैसा निकालना जानते हो ये लिमिट इसका लिमिट अप्लाई योर एल हॉस्पिटल पे ये मैं डायरेक्टली कर दिया इसको अगर देखना चाहते हो इस पेपर ला रहा हूँ यहाँ पे दे रहा हूँ तो यहाँ पे देखो इसका मुझे लिमिट निकालना है आई वांट टू फाइंड लिमिट a tends to 0 e to the power minus a divided by ks minus limit a tends to 0 e to the power minus a plus as divided by s अगर 0 डालोगे तो देखो 0 तो लिमिट k tends to 0 e to the power minus a divided by s रहेगा और इसके लिए देखो k tends to 0 ये भी 0 इसको तोड़ दो लिमिट k tends to 0 e to the power minus a s divided by s प्लस है ना लिमिट k tends to 0 e to the power minus ks divided by ks getting it ये तीन पार्ट में टूटा ना e to the power minus as by ks है e to the power minus ks by ks है ये दोनों कैंसिल हो गए बचा इतना इसके लिए करोगे तो लिमिट k tends to 0 e to the power minus ks by ks इंफिनिटी बाय इंफिनिटी तो ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव e to the power दैट इज लिमिट k tends to 0 e to the power minus ks का डेरिवेटिव कितना माइनस k डिवाइडेड बाय here पर k का डेरिवेटिव करें माइनस s डिवाइडेड बाय s ये देखिए माइनस ओके देखो ये माइनस है तो ये माइनस माइनस कर देते हैं ये माइनस है ये प्लस है ये माइनस तो यहाँ पे एक यहाँ पे माइनस सिंबल है पहले से तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया एस एस कैंसर ई टू दी पावर माइनस एस ये कभी लिखूंगा आप तो ई टू दी पावर माइनस तो इसको ध्यान से रखो बाद में काम में आएगा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के लिए डेरिवेशन तुम्हारा नहीं है विदाउट डेरिवेशन था बट हम डेरिवेशन किए
Laplace transform of delta t minus a equal to e to the power minus as. Right? Everyone? Direct delta function. Yes, sir. हाँ, इसको याद रखना ठीक है. Delta t minus a equal to e to the power minus as. ये जानने के बाद हम क्या करें? फर्स्ट हो गया. नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में डील हुई convolution theorem. Convolution theorem of Laplace transform. ठीक है. देखो मैं भी थोड़ा हड़बड़ा रहा हूँ, अभी टाइम कम है, सारा कंटेंट देना है, इसलिए जितना जल्दी कंटेंट हो रहा है खत्म करो. तुम भी घर में थोड़ा प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो. ठीक है. एक थ्योरी में काम नहीं देता है ना. हमारे पास ऑलरेडी तो बुक है, इसे सॉल्व करने के लिए करना. Now for attendance purpose, just write your roll number in the time. सर वो जो लिमिट वाला थोड़ा दिखाइए सर. वाला में सर डाउट है. देखो यहाँ पर कर देते हैं, वो गलत होता है. ये लाइन दिखेगी ना, ये वाला ना, ऐसे करते हैं. ये चाहिए लिमिट a tends to 0 1 by as e to the power minus as minus e to the power minus a plus as. now इसको लिखेंगे लिमिट a tends to 0, यहाँ पे e to the power minus as बाहर ले आता हूँ. यहाँ पे as रह गया, यहाँ पे क्या देगा 1 माइनस e to the power माइनस के माइनस केस e to the power माइनस एस का कोई आता जाता नहीं है, तो e to the power माइनस एस बढ़ा लिमिट a tends to 0 1 माइनस e to the power माइनस as divided by a. राइट? ये अच्छा लगेगा. ठीक है ना. नाउ इफ यू पुट Yes, a sir. वैल्यू इक्वल टू 0 तो क्या दे रहे हैं? ये 1 तो 0 by 0 फॉर्म 0 by 0 फॉर्म. तो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल को ऊपर का डेरिवेटिव समझ, लिमिट a tends to 0 ऊपर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस माइनस प्लस a e to the power minus as. Here किसमें डेरिवेटिव करते हैं? विद रेस्पेक्ट टू के करते हैं. सॉरी, तो यहाँ पे देगा s और यहाँ पे देगा s. नाउ देखो एस एस कैंसिल आउट, e to the power minus as लिमिट a tends to 0, एस एस कैंसिल आउट, e to the power minus as a tends to 0 पे ये वैल्यू कितना देगा 1 ओनली ओवर e to the power minus as. अब ठीक है. क्लियर? देखो सही क्यों और गलत क्यों? क्यों यस सर. सही है अभी? यस सर. तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना है. ठीक है. ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म एंड रिस्पॉन्स इसका सेकंड सेकंड एग्जाम में आते हैं.
चलो आज के लिए हो गया, थैंक यू ऑल। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you.